میں مشیروں کے خلاف نہیں، یہ قرآن کا حکم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نے دیا تھا کہ فیصلے سے پہلے مشورہ کر لیا کرو، مگر حکمران میں اتنی عقل ہونی چاہیے کہ مشورہ دینے والوں کی نیت اور کردار کو سمجھے۔ خوشامد حکمرانی کے نشے کو اور تیز کر دیتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ حکمران خوشامد کی سریلی لوریوں سے میٹھی نیند سو جاتا ہے۔ سوئے ہوئے ذہن والا حکمران کتنا ہی غازی اور زاہد کیوں نہ ہو، قوم اور وطن کو لے ڈوبتا ہے۔ یہی خطرہ مجھے عز الدین کی طرف سے نظر آ رہا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، آپ تک یہ اطلاع پہنچ چکی ہے کہ محترمہ رضی خاتون نے یہ شادی صرف اس لیے قبول کی ہے کہ حلب اور موصل کی عمارتیں اور ان کی فوجیں ہماری اتحادی رہیں۔ اس خاتون کو شادی کی اور کیا ضرورت ہو سکتی تھی؟ اس کے باوجود مجھے شک ہے، سلطان ایوبی نے کہا، اور میرے شک کی وجہ یہ ہے کہ عز الدین صلیبیوں کے خطرے کی براہ راست زد میں ہے۔ وہ اپنے تحفظ کے لیے بھی صلیبیوں کا درپردہ اتحادی بن سکتا ہے۔ مجھے وہاں کی اطلاع جلدی ملنی چاہیے۔ تم میری آنکھیں اور کان ہو علی، میں نے اندھیرے میں کبھی پیش قدمی نہیں کی۔ کچھ دن اور انتظار کر لیا جائے۔ علی بن سفیان نے مشورہ دیا۔ میں زیادہ انتظار نہیں کروں گا، سلطان ایوبی نے کہا۔ تم جانتے ہو میں نے فوج کو تیاری کا حکم دے رکھا ہے۔ یہ تمہارے سامنے کی بات ہے کہ میں دن رات فوج کو جنگی مشقیں کرا رہا ہوں۔ راز کی یہ بات بھی سن لو کہ میں حلب اور موصل کی طرف نہیں جاؤں گا۔ میرا ہدف اب بیروت ہوگا۔ میں اب دفاعی جنگ نہیں لڑوں گا۔ حلب وغیرہ کے علاقوں میں اپنی فوج لے جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ میں ان علاقوں کے دفاع کے لیے جا رہا ہوں۔ اب میرا انداز جارحانہ ہوگا۔ بیروت فرنگیوں کا دل ہے۔ ٹانگوں اور بازوؤں پر وار کرنے کی بجائے کیوں نہ ہم دشمن کے دل پر ایک ہی وار کر کے ختم کر دیں۔ اب میں قوم اور فوج کو جارحیت کی تربیت دے رہا ہوں۔ اپنے علاقوں میں لڑتے رہنے سے ہم بیت المقدس تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ معلوم کرو علی، معلوم کرو وہاں سے ابھی تک کوئی اطلاع کیوں نہیں آئی۔ مجھے 2 راز درکار ہیں۔ ایک یہ کہ بیروت میں فرنگی فوج کی سرگرمیاں کیا ہیں، اور حلب میں عز الدین کی نیت کیا ہے۔ کیا ہم ایک اور خانہ جنگی کی طرف تو نہیں بڑھ رہے؟ بیروت میں اسحاق ترک ہے، علی بن سفیان نے کہا۔ وہ خود نہ آیا تو کسی اور کو بھیج دے گا، علی بن سفیان نے کہا۔ میں یہاں سے کسی کو روانہ کر دیتا ہوں۔ میں زیادہ دن انتظار نہیں کر سکتا علی، سلطان ایوبی نے کہا۔ یہاں سے کسی کو روانہ کرو گے، وہ جائے گا، وہاں کے حالات معلوم کرے گا اور واپس آئے گا۔ اس میں کم از کم 3 مہینے لگ جائیں گے۔ میں چند دنوں تک فوج کو کوچ کا حکم دے دوں گا۔ تو پھر آپ اندھیرے میں پیش قدمی کریں گے؟ علی نے پوچھا۔ چھاپا ماروں کو ہراول سے بہت آگے اور پھیلا کر رکھوں گا، ایوبی نے کہا۔ میں اللہ کے حکم سے اللہ کی سرزمین کی آبرو کی خاطر جا رہا ہوں۔ میں اپنی سلامتی کے لیے مصر میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ اپریل 1182 عیسوی کے دن تھے جب سلطان ایوبی اور علی بن سفیان اپنے ان جاسوسوں میں سے کسی کا انتظار بے تابی سے کر رہے تھے جو انہوں نے صلیبیوں کے مقبوضہ مسلمان علاقوں اور حلب وغیرہ میں بھیج رکھے تھے۔ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ اس سے 2 ماہ قبل نور الدین زنگی مرحوم کا بیٹا الملک الصالح، جو والی حلب بن کر سلطان ایوبی کے خلاف ہو گیا تھا، مر گیا تھا۔ سلطان ایوبی کے ساتھ جنگ نہ کرنے اور اس کا اتحادی رہنے کے معاہدے کے باوجود وہ درپردہ صلیبیوں کا حواری رہا تھا۔ اس کی موت صلیبیوں اور سلطان ایوبی کے لیے بہت اہم واقعہ تھا۔ الملک الصالح نے مرنے سے پہلے عز الدین مسعود کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ یہ واقعہ بھی اہم تھا، اور سب سے زیادہ اہم واقعہ یہ ہوا تھا کہ عز الدین کی خواہش کے مطابق نور الدین زنگی مرحوم کی بیوہ یعنی الملک الصالح کی ماں رضی خاتون نے اس کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ رضی خاتون شادی کی خاطر شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سلطان ایوبی کے بھائی العادل نے اس تک عز الدین کا پیغام لے کر اسے کہا تھا کہ یہ شادی دمشق اور حلب کی ہوگی۔ اس سے آئندہ خانہ جنگی کا خطرہ ختم ہو جائے گا اور صلیبیوں کے خلاف محاذ مضبوط کیا جا سکے گا۔ رضی خاتون یہ کہہ کر رضامند ہو گئی تھیں کہ میری ذاتی خواہشیں مر چکی ہیں، میں عظمت اسلام کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے قربانی دے دی اور عز الدین کے ساتھ شادی کر لی۔ حلب اور موصل کی عمارتوں پر بڑی مدت سے صلیبیوں کے اثرات کام کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں یہ عمارتیں سلطان ایوبی کے خلاف متحد ہو گئیں اور 3 سال مسلمانوں میں خانہ جنگی ہوتی رہی۔ ہم آپ کو اس کی تفصیلات بتا چکے ہیں۔ اب رضی خاتون نے عز الدین کے ساتھ شادی کر لی تو صلیبیوں کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ رضی خاتون صلیبیوں کے سب سے بڑے دشمن زنگی کی بیوہ ہے، اس لیے وہ حلب اور موصل اور دیگر مسلمان علاقوں سے صلیب کے اثرات ختم کر دے گی۔ ادھر مصر میں سلطان ایوبی کو یہ پریشانی لاحق تھی کہ صلیبی جنگی کارروائی کریں گے۔ سلطان نے یہ بھی سوچا تھا کہ عرب سے ان کی غیر حاضری سے صلیبی فائدہ اٹھائیں گے۔ سلطان ایوبی نے حالات کا اور آنے والے حالات کا بھی جائزہ لیا اور یہ فیصلہ کیا کہ بیشتر اس کے کہ صلیبی پیش قدمی کر کے حلب اور موصل کا محاصرہ کر لیں، وہ مصر سے برق رفتار پیش قدمی کریں اور بیروت کو محاصرے میں لے لیں۔ یہ بڑا ہی نازک اور خطرناک فیصلہ تھا۔ بیروت کو محاصرے میں لینے کے لیے انہیں فوج دشمن کے علاقے میں سے گزار کر لے جانی تھی۔
रास्ते में ही तसादुम का खतरा था। बहरहाल सुल्तान अय्यूबी ने तमाम खतरों का जायजा ले लिया था और हर किस्म की सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। उन्होंने जासूसों की इत्तलात के बगैर कम ही कभी पेशकदमी की थी, लेकिन अब हालात का तकाजा कुछ और था। उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत इस इत्तला की थी कि इज्जुद्दीन की नीयत क्या है और क्या रजी खातून का वहां कोई असर पड़ रहा है या नहीं। अली बिन सुफियान के भेजे हुए जासूस अनाड़ी नहीं थे। राज हासिल करने और काहिरा तक पहुंचाने के लिए वो जान की बाजी लगा दिया करते थे। उन्हें यह सबक हमेशा याद रहता था कि आधी जंग जासूस जंग शुरू होने से पहले ही जीत लिया करते हैं, और ये भी कि सिर्फ एक जासूस की कोताही या गलत इत्तला अपनी पूरी फौज को मरवा सकती है, और ये भी कि सिर्फ एक जासूस दुश्मन की फौज से हथियार डलवा सकता है। अली बिन सुफियान को इसहाक तुर्क पर पूरा भरोसा था। ये भरोसा बजा था। इसहाक बड़े ही अहम राज लेकर काहिरा के लिए रवाना हुआ था। वो सुल्तान अय्यूबी को खबरदार करने आ रहा था कि बाल्डविन का फिरंगी लश्कर बैरूत के इर्द गिर्द दूर दूर तक फैल गया है और इज्जुद्दीन सलीबियों की तरफ झुक रहा है। इसलिए सुल्तान कहीं बैरूत की तरफ फौज न ले जाएं, और अगर उधर को ही पेशकदमी का इरादा हो तो इसहाक सुल्तान को फिरंगियों की फौज के फैलाव और पोजीशनों का नक्शा बताने आ रहा था। मगर वो रास्ते में ही सलीबी जासूसों के गिरोह के जाल में फंस गया। आखिर वो इत्तला क्या है जो तुम सुल्तान अय्यूबी तक ले जा रहे हो? सलीबी जासूसों के इस गिरोह के सरबरा ने इसहाक तुर्क से पूछा और कहा, हम भी मुसलमान हैं, सुल्तान के वफादार और शेदाई हैं। तुम्हारे लिए घोड़ा तैयार है, खाने पीने का सामान घोड़े के साथ बांध दिया गया है। अल्लाह हमारे सुल्तान को ऐसे वफादारों और शेदाइयों से महफूज रखे। इसहाक ने कहा, मैंने उस लड़की को कहा था कि आधी रात के कुछ देर बाद मुझे जगा देना। मैं फौरन रवाना होना चाहता था, मगर तुमने मुझे जगाया नहीं। आधा दिन गुजर गया है, वक्त अलग जाया हुआ है, और अब मैं रवाना हुआ तो घोड़ा इतना सफर तय नहीं कर सकेगा जितना रात को कर सकता। तुम बहुत थके हुए थे, मेरीना ने प्यार से कहा। तुम ऐसी गहरी नींद सोए हुए थे कि तुम्हें जगाना जुल्म समझा। घोड़ा इतना अच्छा है कि जो वक्त जाया हुआ है घोड़ा उसे पूरा कर देगा। इसहाक तुर्क को अभी ये एहसास नहीं हुआ था कि जिसे वो थकन के बाद की गहरी नींद समझता रहा है वो किसी दवाई के असर की बेहोशी है। इतना ज्यादा वक्त सोने के बाद भी उसका जिस्म टूट रहा था। ये दवाई का असर था जिसे वो थकन का असर समझ रहा था। वो सफर के काबिल नहीं था, लेकिन फौरन रवाना होने के लिए बेकरार था। उसकी आंख उस वक्त खुली थी जब सूरज सर पर आया हुआ था। जासूसों का सरबरा और मेरीना उसके होश में आने से पहले ही उसके पास बैठ गए थे। उसकी आंख खुली तो उसके साथ बातें करने लगे। उन्होंने ऐसी बातें की जिनसे इसहाक तुर्क को उन पर जरा सा शुबा भी ना हुआ। वो उन्हें मुसलमान समझता रहा, लेकिन वो उनके इस सवाल का जवाब देने से गुरेज कर रहा था कि वो सुल्तान अय्यूबी के लिए क्या इत्तला लेके जा रहा है। सरबरा बाहर निकल गया। ये इशारा था कि मेरीना इसे अपने जादू से राम करे। इस दिलकश लड़की ने उसे जज्बात को मुश्तइल कर देने वाले अंदाज से कहा कि वो उसे दिलो जान से चाहने लगी है और इसके अलावा बहुत कुछ। काहिरा चलकर इश्क व मोहब्बत के लिए वक्त निकाल सकूंगा। इसहाक ने कहा, अगर तुम मुझे दिलो जान से चाहती हो तो मुझे फर्ज अदा करने में मदद करो। वो उठ खड़ा हुआ और खेमे से निकल गया। कहने लगा, मुझे फौरन घोड़ा दो, कुछ खा पी लो। मेरीना ने उसे बाजू से पकड़कर खेमे में वापस ले जाते हुए कहा, मैं तुम्हें भूखा प्यासा तो नहीं ले जाने दूंगी। वो इसहाक से बगलगीर हो गई, मगर इसहाक को फर्ज ने पत्थर बना दिया था। मेरीना ने उसे बिठा दिया और खेमे के दरवाजे में जाकर बुलंद आवाज से कहा, खाना फौरन ले आओ, वक्त नहीं है। खाना बारबरा लेकर आई और इसहाक के आगे रखकर पीछे हट गई। मेरीना इसहाक के पास बैठी थी और बारबरा उधर जा खड़ी हुई जिधर मेरीना की पीठ थी। इसहाक ने खाना खाते हुए बारबरा की तरफ देखा। बारबरा ने हाथ में छोटी सी सलीब छुपा रखी थी। उसने ये सलीब इसहाक को दिखाई, अपने सीने पर हाथ रखा, मेरीना की तरफ इशारा किया, फिर बाहर को इशारा करके उंगली हिलाई और उंगली अपने होंठों पर रखी। वो खेमे से निकल गई। ये इशारे इतने वाजे थे कि इसहाक साफ समझ गया कि ये सब सलीबी हैं और उन्हें कुछ नहीं बताना। वो चौंक उठा, लेकिन उस्ताद था। अपने रद्द-ए-अमल का इजहार न किया। शक पुख्ता हो गया। उसे इस सवाल का जवाब मिल गया कि ये लोग इस पर इसरार क्यों कर रहे हैं कि वो सुल्तान अय्यूबी के लिए क्या इत्तला लेके जा रहा है। तब उसे ये ख्याल भी आया कि उसे नींद पर इतना काबू था कि ऐसी बेहोशी की नींद कभी भी नहीं सोया था। उसे जागते ही नाक में अजीब सी बू भी महसूस हुई थी। वो जान गया था कि उसे सोते में बेहोश कर दिया गया था, मगर उसे इस सवाल का कोई जवाब न सूझा कि दूसरी लड़की उसे ये इशारे क्यों कर गई है। क्या वो कोई मुसलमान लड़की है जो उनके जाल में फंसी हुई है? मेरीना उसे बड़ी ही प्यारी बातों और मसूर कर देने वाली मुस्कुराहटों और अदाओं से अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी, और इसहाक का दिमाग बड़ी तेजी से सोच रहा था कि वो क्या करे और इन लोगों से किस तरह रिहाई हासिल करे। उसने मेरीना से पूछा कि इस काफिले में कितने आदमी हैं। मेरीना ने बता दिया। कुछ और बातें पूछी और कहा, चलो मुझे घोड़ा दो। वो बाहर निकल गया। वो देखना चाहता था कि बाहर कितने आदमी हैं और उसके निकल भागने के इम्कानात क्या हैं।
बाहर उसने कोई घोड़ा न देखा जो उसे बताया गया था कि उसके लिए तैयार खड़ा है। मेरीना उसके पास आन खड़ी हुई। घोड़ा कहाँ है? इसहाक ने पूछा। मैं जाकर देखती हूँ। वो चली गई। तुम ठीक कहते थे, मेरीना ने अपने सरबराह को जाकर बताया। ये शख्स पत्थर है, वो घोड़े के सिवा कोई बात नहीं करता। हम जो पूछते हैं उसका नाम नहीं लेने देता। इसे कोई शक तो नहीं हुआ? अभी नहीं, मेरीना ने जवाब दिया, लेकिन वो बताएगा भी नहीं। इसका मतलब यह है कि तुम नाकाम हो गई हो। उन्हें मालूम नहीं था कि बारबरा ने उनसे इंतकाम लिया है और उसने ये साबित कर दिया है कि मेरीना कोई जादूगरनी नहीं जो नामुमकिन काम भी कर दिखाए। वो तो ये सोच रही थी कि सुल्तान अयूबी के इस जासूस को वहां से भाग जाने में मदद दे, लेकिन ये मुमकिन नजर नहीं आता था। इसहाक फिर खैमे से निकल गया। उसने मेरीना और उसके सरबरा को देख लिया। वो दूर खड़े बातें कर रहे थे। वो उनकी तरफ दौड़ा गया और पूछा कि घोड़ा कहाँ है? कहीं भी नहीं है, सरबरा ने बिल्कुल ही बदले हुए लहजे में कहा। तुम कहीं भी नहीं जा सकोगे। इसहाक ने अपनी कमर पर हाथ रखा। वहां न तलवार थी न खंजर। उसने उन लोगों की असलियत जान लेने के बावजूद कहा, मैं हैरान हूं कि तुम मुसलमान होते हुए मेरे रास्ते में आ रहे हो। अगर हमसे इज्जत कराना चाहते हो तो बता दो कि अपने सुल्तान के लिए क्या पैगाम लेकर जा रहे हो? सरबरा ने पूछा। सिर्फ इतना सा पैगाम है कि हमारे एक अमीर इज्जुद्दीन ने नूरुद्दीन जंगी की बेवा के साथ शादी कर ली है। इसहाक ने कहा। यह खबर पुरानी हो गई है, सरबरा ने कहा। तुम्हारा सुल्तान 2 माह गुजरे ये खबर सुन चुका है और वो अपनी फौज को शाम में लड़ाने के लिए तैयार कर रहा है। सही बात बताओ, क्या तुम सही बात बता दिया करते हो? इसहाक तुर्क ने पूछा। तुम्हें सही बात बतानी होगी, सरबरा ने कहा, और तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तुम निहत्ते हो, निहत्ते ना भी होते तो इतने आदमियों से लड़ न सकते। सुनो दोस्त, मैं तुम्हारे जिंदा रहने और शहजादों की तरह जिंदा रहने की एक सूरत पैदा कर सकता हूँ। मेरी तजवीज मंजूर कर लो, हमारे साथ चलो। हमारे लिए यही काम करो जो सलाहुद्दीन अयूबी के लिए कर रहे हो, और जरो जवाहिरात में खेलो। उसने मेरीना की तरफ इशारा करके कहा। इस किस्म की लड़कियां तुम्हारी खिदमत के लिए हाजिर रहा करेंगी। क्यों सहराओं में मारे मारे फिर रहे हो? मैं सलीब के लिए काम करूं? नहीं करोगे तो हमारे किसी कैद खाने के तहखाने में बंद रहोगे, सरबरा ने कहा। वो ऐसा जहन्नुम होगा कि ना मरोगे ना जिंदा रहोगे। तुम इस सजा का तस्वुर भी नहीं कर सकते। तस्वुर भी हौलनाक है। सोच लो और हमारे साथ चलो। वापस तो नहीं जा सकोगे। तुम मुझ पर एतबार किस तरह करोगे? इसहाक तुर्क ने कहा। मैं तुम्हारे गिरोह में शामिल हो जाऊं, तुम मुझे मेरे ही इलाके में भेजोगे। तुम किस तरह यकीन करोगे कि मैं अपने ही इलाके में नहीं रह जाऊंगा और तुम्हें धोखा नहीं दूंगा? हमारे पास इसका इंतजाम है, सलीबी सरबरा ने कहा। तुम अपने इलाके की बात कर रहे हो? हम तुम्हें तुम्हारे घर के तहखाने से भी निकाल लाएंगे। तुम्हारा ख्याल क्या है कि तुम्हारे मुल्क में हमारे जितने जासूस हैं उनमें से तुम्हारे मुल्क का कोई बाशिंदा नहीं? 10 जासूसों के एक गिरोह में सिर्फ 2 आदमी हमारे और 10 तुम्हारे अपने भाई होते हैं। उनमें से कोई हमें धोखा देने की जरूरत नहीं करता। वो जानते हैं कि ऐसी जरूरत करने वाले का अंजाम क्या होता है। हम सिर्फ उसे कत्ल नहीं करते, सबसे पहले उसके बीवी बच्चों को एक एक करके कत्ल करते हैं और हर लाश उसके सामने रख देते हैं। और जो हमारे वफादार रहते हैं उनके लिए यह दुनिया बहिश्त बनी रहती है। इनमें से जो पकड़ा जाता है उसके घर वालों को घर जाकर वहां हम नकदी के अंबार लगा देते हैं। मुझे सोचने दो, इसहाक ने कहा। यहां से कब रवानगी होगी? आज ही, सरबरा ने कहा। आधी रात के बाद। तुम सोच लो, ये भी सोच लेना कि इनकार के बाद तुम आजाद नहीं हो सकोगे। मैं जानता हूं, और तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा कि क्या राज लेकर जा रहे हो, सरबरा ने कहा। बता दूंगा, इसहाक ने जवाब दिया। मेरा जहन बहुत हद तक आमादा हो गया है। जाओ, अभी आराम करो, सरबरा ने कहा। इसहाक तुर्क खैमे की तरफ चल पड़ा। इतनी ज्यादा जंगी कुव्वत जाया हुई जो सलीबियों को सरजमीन अरब से निकाल सकती थी और फलस्तीन को आजाद कराया जा सकता था।